Good evening and I welcome you students. We already discussed student what are different type of diseases, infectious diseases, non-infectious diseases, and we also discussed the means of spread of the diseases. Then we discussed organ specific and tissue specific manifestations. You have seen that different diseases are occurring at different organs of the body. Also, there is a specific because the disease causing microbes enter the body through different means, and then you have seen that different species have evolved into home on different parts of the body. All this selection we have seen, and we have also given you the signs and symptoms of diseases that will also depend on tissue or organ on which the microbe attacks. So the microbes are attacking different tissues, so there will be different symptoms and signs. You know, if the liver is targeted, then what do you get? Jaundice. Jaundice. If brain is a target, what you get, students, is a recap of what we did. Headaches, vomiting, Headache, unconsciousness. So symptoms and signs of infection will be determined by the target tissue or organ and the functions that are carried by the tissue or the organs. So infection like HIV comes into the body via sexual organs, and yes, they spread to the lymph nodes all over the body. And malaria causing microbes enter where? Malaria causing mosquito bite. go to the liver and then to the RBC, and the virus causing Japanese or brain fever, which is a mosquito bite, goes to infect the Brain. What is that known as? Japanese encephalitis or brain fever. That's very, very dangerous, you know that. So then we have a lot of information now. The coronavirus which is there, it is attacking where? Lungs. Lungs. And you have seen, I have sent a video also on breathing. Yes. Why did I do that? Because breathing is very, very essential. Inhale, exhale, and if we don't have enough oxygen, then what is going to happen? So you experience that there are certain organs and microbes are specific. They are attacking organs, and then the signs and symptoms will depend on the which organ is it attacking the most. And then we have to find the treatment. Now the question is coming, principles of treatment. Interesting thing is that you have seen for corona, they are saying earlier you have seen there was no treatment. What they did then? When treatments are not available, what we do? Tell me. Prevention, management, two things we are doing. Yes, sir. If we are facing the danger of corona, and right now what is the main danger coming? Which one? Omicron. This is a variant. So the Omicron variant is there. So we are saying that they are saying that even the 2 vaccines which have been given may not be effective. There is no scientific study about anything right now. People who are 2 vaccines, they are also getting Omicron. Therefore, what will we use then? What methods will we use? Tell me. We will prevent. So prevention is one. And if it comes, then we have to manage it. And today's topic is very, very important. The principles of treatment. Before I talk of principles of treatment, tell me, students, you have got fever sometimes in your life. Everyone, I also had fever. Yes, sir. What steps were taken by your family when you got fever? Tell me. We take different medicines to cure the fever and reduce the symptoms. You are saying that you had fever. Okay? And your family is the first to help you. Okay? Your parents come immediately to help. So they are trying to reduce
what they are trying to reduce, student, reduce the effect of the disease, you are saying? What treatment is given? Tell me, what treatment is given by your parents? Antibiotics, paracetamol. Lot of times you say sleep, take rest. It is a very common thing, students. What happened is I used to get fevers. And what my parents were doing, they were giving me very, very hot tea. ठीक है? And they asked me to sleep. क्या बोला? सो जाओ. What happened? Can you tell me what happened when I took hot tea? मुझे फीवर है एंड मैंने क्या किया, ऊपर चादर ओढ़ ली, कुछ शिवरिंग हो रही थी और मैं बेड पे स्लीप कर गया. अब बताओ इसका क्या क्या हुआ इससे? कैन यू टेल मी व्हाट हैपेंड? Sir, much of our energy is conserved, so it is used in curing the disease. देखो, we are trying to understand everything, common sense, intelligence we are requiring. Before I start mugging the things, there is no point in mugging. Lot of information is available to us, we can use it, we can prevent it, or we can reduce the symptoms. होता क्या था, उससे बड़ी स्वेटिंग होती थी मुझे. देखो, you can experience it. Certain things we have to experience, students. क्या हुआ? स्वेटिंग हो गई बहुत ज्यादा, पसीने छूट गए. क्या किया था मैंने? गरम लिया और ऊपर चादर ओढ़ ली. तो 1-2 घंटे के बाद देखा कि पसीना आ गया, स्वेटिंग हो गई. इससे क्या हुआ कि जो टॉक्सिन्स थे, स्वेटिंग में क्या होता है, टॉक्सिन्स आर कमिंग आउट ऑफ द बॉडी, आर रिलीज्ड बाय द बॉडी. टेल मी यस और नो? Yes, sir. तो क्या हुआ कि फीवर डाउन हो गया. तो एक तो स्लीप का भी हमने यूज किया. आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे भाई रेस्ट कर लो. ठीक है भाई, फीवर हो गया तो दे विल गिव यू ए रेस्ट. अभी क्या कह रहे हैं, ओमिक्रॉन के सारे पेशेंट कोई हॉस्पिटल में तो नहीं गए? टेल मी. Yes, आर दे? sir. और जो दूसरे हैं वो कहाँ पर हैं? दे आर एट बेड रेस्ट. तुम्हें पता है डॉक्टर्स लिखते हैं बेड रेस्ट. अभी क्या कह रहे हैं भाई, एक रूम में क्वारंटाइन कर दिया. यू आर लिविंग इन वन सेपरेट रूम. ठीक है, रेस्ट कर रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे, अंदर नहीं जा रहे. तो आपको ये जो उसके साथ में क्या दे रहे हैं कि फीवर को कम करने के लिए एक मेडिसिन दी जा रही है. कौन सी मेडिसिन यूज होती है फीवर के लिए बताइए? बहुत यूज करते हैं आप. पैरासीटामोल. केमिस्ट्री में पढ़ लोगे पैरासीटामोल कैसे बनता सारा. तो पैरासीटामोल जो है एक तरीके से क्या करती है, फीवर को डाउन कर देती है. राइट और रॉन्ग? Yes, sir. तो हमने क्या किया स्टूडेंट कि जो इन्फेक्शियस डिसीज है हमने उसके सिम्टम्स को कम करने की कोशिश की है. व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, रिड्यूस द सिम्टम्स. जिससे कि आपने कहा, मुझे बिल्कुल सही कहा कि एनर्जी को बचाना है. ठीक है, हमारी एनर्जी जो है स्टूडेंट्स, हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास एनर्जी थी उसको कंजर्व कर दिया ताकि वो वेस्ट ना हो. तो अब हमारा इससे एक तरीके से हीलिंग हो जाता है. हीलिंग हो गया. ठीक है, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग. What are the steps taken by your family when you fall sick? That was my first question, student. This has been asked in paper also. So you can write on this. You don't have to write too much. Always I say write less but correct information. Have you ever thought why you sometimes feel better if you sleep for some time? ठीक है जी. तो आपने एनर्जी कंजर्व कर ली और आपका जो इफेक्ट था वो डिसीज का कम हो गया. तो इन्फेक्शन को आपने कम करने की कोशिश की है. अब होता ये है कि दिस मे नॉट वर्क ऑल द टाइम. ठीक है, अब क्या करेंगे फिर? तो सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट विल नॉट मेक इन्फेक्टिंग माइक्रोब गो अवे. अब माइक्रोब अगर थे तो वो इससे खत्म नहीं हुए, मतलब गए नहीं. अगर इससे चले जाते हैं, बहुत सारे माइक्रोब्स इससे खत्म हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है. You know, lot of during the corona, which fever, what they are giving? Paracetamol. Yes, sir. And they say stay at home, and slowly what happens, symptoms go, धीरे खत्म हो जाते हैं. मैक्सिमम लोगों ने यही किया, तो वो उसका इफेक्ट को कम कर दिया.
ठीक है, और कुछ था नहीं हमारे पास। अब तो वैक्सीन हो गई, वो एक सेपरेट इशू है, दो वैक्सीन लगी है। एक तो ये हो गया कि जो प्रिंसिपल्स हम करेंगे ट्रीटमेंट के, वन फर्स्ट इजीएस्ट थिंग इज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिजीज। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। देयर आर टू वेज टू ट्रीट इन्फेक्शियस डिसीजेस। पहला कौन सा है, रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिसीज, ये हमने अपने होम में कर लिया। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू विल डू। लेकिन Yes, sir. अगर एक्सट्रीम हो गया एंड दिस डज नॉट वर्क, व्हाट हैपेंस, तो जो इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स हैं वो नहीं जाते इससे। व्हाट हैपेंस स्टूडेंट, इफ दिस मेथड फेल्स, मतलब क्या हुआ, जो माइक्रोब्स थे, इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स जो थे, वो गए नहीं आपके बॉडी से, ठीक है, दे डू नॉट गो, देन डिसीज विल नॉट बी क्योर्ड। दे डू नॉट गो, तो क्या होगा, डिसीज क्या क्योर हो जाएगी? No, sir. नो। तो फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ स्टूडेंट, डिसीज नॉट क्योर्ड। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर जल्दी से बताओ, अब अपना ही सोचना है। Now we will take medicines. मेडिसिन तो है ही है, मेन पर्पस क्या, किल द कॉज ऑफ द डिसीज। तो किल कॉज ऑफ द डिसीज का मतलब क्या करेंगे, किसको किल करेंगे, माइक्रोब्स को। माइक्रोब्स तो जा नहीं रहे, तो किल द माइक्रोब्स। अब ये स्टोरी है कि इनको कैसे मारा जाए। अगर मर जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मरेंगे तो क्या करेंगे फिर। जैसे कोरोना में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, कहाँ मर रहे थे वो, तो फिर ये फिर बहुत प्रॉब्लम है। तो हाउ डू वी किल द माइक्रोब। तो इसके लिए आपने कहा कि आप मेडिसिन को यूज करोगे। क्या यूज करोगे, मेडिसिन को यूज करोगे, मेडिकेशन ही कहते हैं इसको। तो अब डिफरेंट कैटेगरीज में हमारे माइक्रोब्स आए। माइक्रोब्स किस टाइप के थे आपके पास, कोई एक टाइप के तो माइक्रोब्स है नहीं, राइट। वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, मेनली हम इनको किस कैटेगरी में कह रहे हैं, वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, और बता सकते हो कोई कौन से होते हैं, फंगी है, और इनको क्या बोलते हैं, प्रोटोजोस, Protozoans. प्रोटोजोआ। तो इस तरह Worm. से डिफरेंट टाइप के हमारे पास जो है माइक्रोब्स। तो क्या वो एक टाइप की मेडिसिन से मरेंगे या नहीं मरेंगे, यही एक प्रॉब्लम है। तो वायरसेस, बैक्टीरिया हैव सम एसेंशियल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेसेस। इनकी एक बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस होती है। क्या होती है, लाइफ प्रोसेस। हमारी एक लाइफ प्रोसेस है, इनकी भी एक लाइफ प्रोसेस है। तो क्या हम इनकी लाइफ प्रोसेस को किल कर सकते हैं विदाउट किलिंग आवर लाइफ प्रोसेस। हमारी भी एक लाइफ प्रोसेस चल रही है। तो मेडिसिन ऐसी होनी चाहिए कि वी शुड किल द लाइफ प्रोसेस ऑफ द माइक्रोब्स बट नॉट डिस्टर्ब द आवर लाइफ प्रोसेसेस। तो ये एक पाथवेज होता है, मैकेनिज्म होता है, इसी को हमें यूज करना है। मतलब इसी तरह से ही सारे मेडिसिन बनेंगे। यहां तक सही हो गया, बोलो समझ में आ गया। Yes, sir. अच्छा Yes, चलो, sir. और देख लेते हैं फिर। सोचना है, थिंक करना है बस, और कुछ नहीं। धीरे धीरे वी विल बी एबल टू फाइंड आंसर्स अवरसेल्फ। फिर हम अपना खुद ही लिख लेंगे जो भी आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मैंने क्या कहा यहाँ पर, टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द डिसीज वी प्रोवाइड ट्रीटमेंट दैट विल रिड्यूस द सिम्टम। द सिम्टम्स आर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। देखो ये एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा इन्फ्लेमेशन। होता क्या है बॉडी के अंदर स्टूडेंट्स, कि जब कभी भी कोई डिसीज होती है तो आपका इम्यून सिस्टम रिएक्ट करता है, देखो उसको काउंटर करता है, राइट और रॉन्ग। Yes, हमारे sir. अंदर जो हमारे बचाने वाली शक्ति है काउंटर करती है उसको, तो उसके उसका भी एक रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, वो इन्फ्लेमेशन हो जाएगी बॉडी में। बहुत सारी मेडिसिन आप खाते हैं, उसके बाद आपको क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कोई स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाती है, पेन होती है, सब चीजें होती हैं जब आप डिसीज के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं। बोलो होता है या नहीं होता, तुम बताओ। Yes, sir. तो ये इन्फ्लेमेशन जो होती हैं Takes place. वो हो जाती हैं। तो वी कैन टेक मेडिसिन दैट ब्रिंग डाउन फीवर, रिड्यूस पेन और लूज मोशन, टेक बेड रेस्ट। सच ए काइंड ऑफ सिस्टम डायरेक्ट ट्रीटमेंट इज इनएडिक्वेट। तो आपके पास कोई फीवर हो गया, पेन हो गई, लूज मोशन हो गए, आपने बेड रेस्ट किया, तो ये जो सिम्टम है डायरेक्टेड ट्रीटमेंट ये इनएडिक्वेट है, सिंस इट विल नॉट मेक द पैथोजेंस गो अवे।
फॉर दैट वी हैव टू किल द माइक्रोब्स इटसेल्फ। तो इससे क्या हुआ, माइक्रोब मरे तो है नहीं, माइक्रोब्स आर नॉट डेड, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज, इसे क्या बोलते हैं, जब हम रिड्यूस करते हैं किसी का इफेक्ट को, तो वो जो ट्रीटमेंट है स्टूडेंट वो इनएडिक्वेट है। मतलब रिड्यूस वाला जो ट्रीटमेंट है दैट इज इनएडिक्वेट का मतलब क्या हुआ कि माइक्रोब्स नहीं मरे तो फिर आ जाएंगे, फिर वो ग्रो कर जाते हैं, चेन बन जाती है उनकी। तुम्हें पता है कि 2-3 दिन के लिए डाउन हुआ, तीसरे दिन फिर आ गया, तो अभी तो माइक्रोब्स हैं बॉडी में। ये सारी चीजें यू मे हैव एक्सपीरियंस्ड, आई हैव एक्सपीरियंस्ड, मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया जो मैं पढ़ रहा हूँ। तो बट दिस काइंड ऑफ सिम्टम डायरेक्टेड ट्रीटमेंट बाय इटसेल्फ विल नॉट मेक द इन्फेक्टिंग माइक्रोब गो अवे एंड द डिसीज विल नॉट बी क्योर्ड, फॉर वी हैव टू किल द माइक्रोब्स। यही हम कह रहे हैं कि इनको किल किया जाए, ठीक है। तो टू क्योर द डिसीज, बोलो यहां तक सही है? यस सर। ओके, ठीक है, आगे क्या करते हैं फिर? One way to kill microbes is to use the medicines. Now microbes can be classified into different categories. अब सारे माइक्रोब्स हमने देखा डिफरेंट है, ये तो है नहीं कि एक मेडिसिन सारे माइक्रोब्स को किल कर सकती है, नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट हमने क्या कहा, ईच ऑफ दीज ग्रुप, देयर आर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमने ग्रुप्स बना लिए। क्या बनाए हैं? ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भाई हर इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर सबका अलग अलग करेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा। तो ऐसे एक ग्रुप में रख दें जिन उस पूरे ग्रुप का ट्रीटमेंट हो जाए, इसी के लिए मेडिकेशन बनाई जाती है। तो विल हैव सम एसेंशियल बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेसेस which are peculiar to that group and not shared with other group. तो हर ग्रुप के पास स्टूडेंट्स, हर ग्रुप की कुछ, there are some biochemical processes, बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस होती है हर ग्रुप की, तो वो डिफरेंट होती है डिफरेंट ग्रुप्स की, उसी बेसिस पे ट्रीटमेंट मेडिकेशन बनाई जाती है। तो ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव ए बायोकेमिकल, जैसे अब ये कोरोना है, फिर अब कौन सा आ गया? ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन, फिर ऐसा भी कोई वेरिएशन आता है, तो ये एक ग्रुप ही है, वायरस इसका एक ग्रुप ही चल रहा है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि एक बायोकेमिकल जो इनकी लाइफ प्रोसेसेस है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का है इनका, which is different from other groups. These processes may be pathway for the synthesis of new substance or respiration. तो ये एक नया pathway बन जाता है। Our cells may make new substances by a mechanism different from that used by bacteria. तो जैसे बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया का भी एक लाइफ प्रोसेस होता है, ठीक है, बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस है, ठीक है, दैट इज डिफरेंट, ठीक है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस ऑफ आवर सेल्स। हमारा भी सेल्स का एक बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस है, बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस, ठीक है, ऑफ आवर सेल्स। तो ये लाइफ प्रोसेस बैक्टीरिया का डिफरेंट है और हमारा डिफरेंट है। तो वी हैव टू फाइंड ए ड्रग, हमें क्या फाइंड करना है? एक ड्रग फाइंड करनी है। ये क्या करेगी? टू दैट ब्लॉक्स द बैक्टीरियल सिंथेसिस पाथवे, इसका जो पाथवे है इसको ब्लॉक करे, ठीक है, ब्लॉक्स द बैक्टीरियल सिंथेसिस पाथवे, इसे क्या बोलते हैं? ब्लॉक करना है, बैक्टीरियल सिंथेसिस पाथवे, ठीक है, बट डज नॉट अफेक्ट आवर सेलुलर पाथवे, हर हमारे पाथवे को वो अफेक्ट ना करे, क्योंकि अगर दोनों को कर दिया तो देन वी विल आल्सो गो विद द माइक्रोब्स। तुम्हें पता है कि बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं जो भी आप मेडिकेशन से ले रहे हो, ये कहीं बॉडी के अंदर और भी चीजों को अफेक्ट करते हैं, यू नो दैट। तो दिस इज अचीव्ड बाय, इसी को एंटीबायोटिक कहते हैं। तो व्हाट इज एंटीबायोटिक देन? इसका नाम भी हमने एंटी दिया, बायोटिक मतलब जो बायोकेमिकल प्रोसेस है उसके एंटी है, किसके? जो बैक्टीरिया का बायोकेमिकल
लाइफ प्रोसेस है उसके एंटी, तो उसका क्या नाम दिया गया? एंटीबायोटिक। ठीक है, इज द वर्ड क्लियर? एंटी मीन्स Yes, sir. अगेंस्ट द बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस ऑफ द बैक्टीरिया, तो उसके बायोकेमिकल लाइफ प्रोसेस के अगेंस्ट ब्लॉक कर देगा उसको, तो उससे बैक्टीरिया क्या होगा? किल हो जाएगा, किल हो जाएगा। तो फिर हमारे को तो उसने किल नहीं किया, लाइफ प्रोसेस को जो हमारी थी, इट इज नॉट डिस्टर्ब्ड, एंड देयरफॉर व्हाट विल हैपन? द डिसीज विल गेट क्योर्ड। ठीक है, और चलते हैं, फिर समझ आ गया। Now a further important question was asked student. It is harder to make antiviral medicine. भाई एंटीबायोटिक तो पहले ही बन गया था बैक्टीरिया को किल करने वाला, ठीक है, लेकिन जो वायरस होते हैं उन्हें मारना बहुत मुश्किल है। यही प्रॉब्लम आ रही थी ना कि ये एंटीवायरल मेडिसिन जो है स्टूडेंट, इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, टू मेक, तो ये बहुत मुश्किल है। कौन सी? एंटीवायरल मेडिसिन। दैट इज द रीजन कोरोना स्टार्टेड इन 2019, वैक्सीनेशन केम आफ्टर how much time it came? Vaccination After more than a year. about 18 months or so। टेस्ट होता है वो, फिर उनके एक्सपेरिमेंट्स होते हैं साइंस लैब्स में, और फिर उसके बाद ही वो देखते हैं कि इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं। सो मेनी थिंग्स आर टेस्टेड बिफोर द मेडिसिन और वैक्सीन्स और ड्रग्स कम इन द मार्केट। तो एंटीवायरल मेडिसिन डिफिकल्ट है भाई। देन टू मेक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंटीवायरल मेडिसिन वेरी डिफिकल्ट टू मेक, देन antibacterial medicine. Why student this question was asked? Important question. Because viruses have few biochemical mechanism of their own. तो आप क्या कर रहे थे? बायोकेमिकल मैकेनिज्म जो इनका होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस जो होती है, उसको स्टॉप कर रहे थे, ठीक है। अब इसकी जो बायोकेमिकल प्रोसेस है वो डिफरेंट है बिल्कुल, ठीक है। दे हैव फ्यू बायोकेमिकल ऑफ देयर ओन, इनका एक अपना ही बायोमेकेनिज्म है। दे एंटर अवर सेल्स एंड यूज अवर मशीनरी। ये क्या करते हैं वायरसेस? तो वायरसेस क्या करते हैं? वो दे एंटर आवर सेल्स, हमारे सेल्स में एंटर कर जाते हैं, एंड यूज आवर मशीनरी, and they use our machinery student for their life process। तो अपनी लाइफ प्रोसेस के लिए वो हमारी मशीनरी का यूज करते हैं। देयर आर फ्यू वायरस स्पेसिफिक टारगेट्स टू एम एट। देयर आर फ्यू एंटीवायरल ड्रग्स, फॉर एग्जांपल, बहुत डिफिकल्टी से बनाई गई, द ड्रग दैट कीप HIV इन्फेक्शन अंडर कंट्रोल। वेरी फ्यू, बहुत फ्यू हैं अभी तक ड्रग्स। तो कोरोना की तो कोई ड्रग बनी नहीं, वैक्सीन ही आई है। ड्रग आई है कोई? No, sir. एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं कि है कोई, बनेगी। चलो ये भी समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। Yes. Let us see what are the principles of prevention. So basically what principles we will use, we already have got knowledge of that. Disease prevention is a procedure through which individuals, particularly those with risk factors, are treated in order to prevent disease from occurring. तो प्रिवेंशन क्या होती है? बेटर देन क्योर, ठीक है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो ये जैसे कोरोना भी है, तो वो कह रहे हैं ना कि किस एज में ज्यादा अटैक करेगा, बताओ कौन कौन को ज्यादा अटैक करेगा? दोज इंडिविजुअल्स, कौन से इंडिविजुअल्स हैं? Elderly people. पहला तुमने कहा एल्डरली, दूसरे Small children. हैं? Small children. चलो तुम कह रहे हो स्मॉल चिल्ड्रन, मतलब ये भी वीक है, इनका इम्यून सिस्टम वीक है। और कुछ लोग हैं जिनको ऑलरेडी क्रोनिक बीमारी है, जो क्रोनिक डिसीज से सफर करते हैं, जैसे कि कैन यू टेल मी मैक्सिमम डेथ्स किन की हुई ड्यूरिंग कोरोना? कौन सी क्रोनिक डिसीज थी लोगों को? Diabetic patients.
Diabetic patient students, they are going to be very heavy community. तो इनको बहुत ज्यादा अटैक होने वाला है, अगर हो गया तो फिर इनका ट्रीटमेंट मुश्किल है। इसी तरह कोई अस्थमेटिक पेशेंट है, कोई हार्ट के पेशेंट है, उन्हें ज्यादा अटैक होने वाले हैं। तो जिनका पास ज्यादा रिस्क है, ठीक है, उनका प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट कैसे होता है? नॉर्मली बिगिंस आइदर बिफोर साइंस एंड सिम्टम। तो साइंस और सिम्टम्स के पहले ही ट्रीटमेंट हो जाता है। ट्रीटमेंट कब बिगिन होता है स्टूडेंट? बिफोर साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस एंड सिम्टम्स। ये वेट नहीं करनी कि सिम्टम्स आ रहे हैं या नहीं डिसीज के, तो उससे पहले ही हमें अपना ट्रीटमेंट प्रिवेंशन का करना है। तो क्या मेथड्स प्रिवेंशन के यूज हुए हैं बताओ? इन सब लोगों को क्या एडवाइस किया गया, क्या किया इन लोगों की प्रिवेंशन के लिए? तुम्हारे स्कूल बंद हो गए यस सर। और सीनियर को भी बोल दिया कि डोंट कम आउट ऑफ द होम्स, और वैक्सीनेशन सबसे पहले सीनियर सिटीजन्स को दिया गया, तुम्हें पता है, हेल्थ वर्कर्स को दिया गया। और जिनको क्रोनिक डिसीजेस थी उनको भी बोला सर्टिफिकेट ले आओ, और उनको भी दे वर प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ द वैक्सीनेशन। इज इट राइट? यस सर। तो ये गाइडलाइंस का यूज किया गया। तो प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन अब हमें बता रहे हैं, और अपनी तरफ से जो नेचुरोपैथ हैं वो अपनी अपनी थ्योरी भी बता रहे हैं, योगा मेडिटेशन करवा रहे हैं, या कि वो हॉट वाटर थेरेपी, साल्ट वाटर, और जो भी कुछ कर रहे हैं लोग, स्टीम वगैरह, हर अपने अपने वे में कुछ नेचुरल हर्ब्स का भी यूज किया जा रहा है। ऑल दिस दे आर प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन। ठीक है? यस सर। चलो ठीक है, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। अब ऐसी कौन सी चीजें हम क्या करें भैया, कौन सी मेथड्स हैं? तो इन्हें बोलते हैं हेल्दी हैबिट्स। तो व्हाट आर हेल्दी हैबिट्स स्टूडेंट्स? हमारी हैबिट्स ही तो होती हैं जिसके कारण सारी प्रॉब्लम आती है भैया। तो हम अगर हेल्दी हैबिट्स रखेंगे तो हम जर्म्स जो आने वाले हैं उन्हें तो पीछे हटा रहे हैं अपना, और क्या करना है? ये तो वी नो दैट जर्म्स आर कमिंग। कैसे आ रहे हैं वो भी तुमने देख लिया, कोई एयरबोर्न है, कोई वाटरबोर्न है, ये सब चीजें हमने स्टडी की, कैसे वो स्प्रेड होते हैं फ्रॉम 1% to 2%, इन्फेक्शन कैसे चलती है, ये सारा कुछ तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देख लिया। तो हम अपनी हैबिट्स को कैसे चेंज करें? पहला वो क्या कह रहा है? हैंडल एंड प्रिपेयर फूड सेफली। तो फूड के अंदर जर्म्स आ सकते हैं, यस और नो? टेल मी। यस सर। तो फूड को आपने कैसे प्रिपेयर करना है, हैंडल करना है? आप आउटसाइड से ईटिंग कर रहे हैं, लोग बाहर से मंगा रहे हैं, बाहर जाके खा रहे हैं, तो फिर क्या होगा? देयर इज मोर डेंजर, द जर्म्स कैन एंटर। दूसरा क्या कर रहे हैं आप? वॉश हैंड्स ऑफन। अब पहले इतना आइडिया नहीं था वॉश हैंड्स का, बट नाउ यू हैव सीन पीपल आर वॉशिंग हैंड्स मेनी टाइम्स इन अ डे। तो आप बार बार सोप सोल्यूशन से हाथ को धोते हो, कोई चीज खाते हो, कोई पीते हो, किसी को टच भी करते हो, आप लिफ्ट को टच कर रहे हो, किसी चीज को टच कर रहे हो, तो उनमें भी जर्म्स होंगे, हर तरह के जर्म्स होते हैं। तो फिर वॉश कर रहे हैं हैंड्स को। क्लीन डिसइंफेक्ट कॉमनली यूज सरफेसेस। जिन सरफेसेस पे आप बैठते हो, उठते हो, तो उनको भी क्लीन करना जरूरी हो गया है। क्या करते हो तुम? वो घर में जो लगाते हो, पोछा जो लगाते हो, उसमें क्या डालते हो? फिनाइल डालते हो? क्या डालते हो? वो स्मेल सी आती है जो। तो ये सब हम कर रहे हैं डिसइंफेक्ट, उसे क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं, यस और नो? डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं? ये किल कर देते हैं जो भी जर्म्स और माइक्रोब्स होंगे, ये किल कर देते हैं डिसइंफेक्टेंट। फ्लोर वगैरह जब वॉशिंग करते हैं। कफ एंड स्नीज इनटू अ टिश्यू और यूर स्लीप। तो अब जब कफ और स्नीज आएगी तो आती तो सभी को है, तो आपने क्या किया? मास्क लगा लिया है, और टिश्यू पेपर होता है ना, उसको रख लेते हैं, उस पर करके उसको फिर डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। आप अपनी पर्सनल आइटम्स जो थी वो शेयर करनी बंद कर दी। कोई ले भी नहीं रहा, कह रहा है ये अपनी पहले चीजें बारो करते थे, आप कहते हैं जी छोड़ो, आप अपनी चीजें अपने पास रखो। तो इसका भी बंद कर दिया। और वैक्सीनेशन तो आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, गेट वैक्सीनेटेड। तो अब हमारे, आपका कह रहे हो ना, चिल्ड्रन की स्टार्ट होगी, कितनी एज से स्टार्ट हुई है? 15 to 18 years. 15 to 18 years vaccination has started. Students in our country. In many countries they already did it.
अवॉइड टचिंग वाइल्ड एनिमल। ये जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं इनके अंदर भी कुछ ऐसे जर्म्स होते हैं एंड दे कैन पास ऑन टू अस। स्टे होम व्हेन सिक, तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे ही सिक है तो आप घर में ही रहेंगे। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, कंज्यूम क्लीन फूड एंड वाटर, कीप योर एनवायरनमेंट एंड एयर क्लीन। तो बेसिकली हम क्या कहना चाहते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है, हाउ विल वी प्रिवेंट, क्या करोगे फिर, पढ़ना जरा क्या लिखा। मेंटेन, Maintain personal hygiene, ओके, keep your surroundings clean, हाँ, consume clean food and water, keep your environment and air clean. वी कैन राइट आंसर्स नाउ आवरसेल्फ। तो अपना आंसर खुद बना सकते हैं, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हम अपने आंसर्स को बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया स्टूडेंट, पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वी हैव टेकन इट। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या आया आपको, व्हाई शुड वी प्रिवेंट डिसीज, बताओ व्हाट आंसर यू विल गिव स्टूडेंट। क्वेश्चन आंसर, व्हाई शुड वी प्रिवेंट डिसीज स्टूडेंट, क्यों प्रिवेंट करना चाहिए हमें। Because it may affect some of our organ system, and we may not get cured from it. देखो प्रिवेंशन के लिए WHO एंड सो मेनी अदर organizations all over the world, they started vaccination programs। आपको पता है आपके कंट्री में भी बहुत बड़ा वैक्सीनेशन चलता है, जब बच्चे पैदा होते हैं तब भी वैक्सीन दी जाती हैं। कौन कौन सी दी जाती हैं, कुछ आइडिया है आपको। Pulse vaccine, polio vaccine. पोलियो भी polio बहुत बड़ी थी, vaccine. वो एरेडिकेट हो गई बाय वैक्सीनेशन इन इंडिया। Yes, sir. तो ऐसे कई वैक्सीन वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जो बच्चे नए भी न्यू बॉर्न होते हैं उन्हें भी दिए जाते हैं। पहले बहुत पोलियो के केसेस थे और भी इस तरह के हैं। तो इसके प्रिवेंट करने के लिए क्या हुआ, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला ऑल ओवर द वर्ल्ड, इट इज स्टिल गोइंग ऑन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थ्रू रूटीन, इसे रूटीन वैक्सीनेशन किया गया। दिस कैन इंप्रूव बोथ हेल्थ एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। प्रॉब्लम ये होता है कि जब बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं तो फिर एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन हो जाता है लोगों के ऊपर, पर्सनल एंड टू द नेशन आल्सो। वी हैव सीन कोरोना पैंडेमिक, हाउ मच इकोनॉमिक लॉस हैज बीन देयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमारे कंट्री में भी हुआ, लॉट ऑफ पीपल हैव लॉस्ट जॉब्स, दे डोंट हैव वर्क, गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड आल्सो लॉट ऑफ मनी, ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डिस्टर्ब करती सारी, हेल्थ भी और फाइनेंशियल पोजीशन भी। तो इंक्रीज्ड इन्वेस्टमेंट्स ऑन इम्यूनाइजेशन इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज could avert up to 36 million deaths and 25 million cases of improvement due to medical costs। ये इंफॉर्मेशन है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फिगर्स कितनी बड़ी हैं। अगर इंक्रीज्ड, अगर ये कंट्रीज अपनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करें ऑन इम्यूनाइजेशन, ठीक है, कौन से हैं, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में बहुत ज्यादा डेथ्स होती हैं बिकॉज ऑफ द डिसीजेस, तो कितने सेविंग हो जाएगी, 36 मिलियन डेथ्स बच जाएंगी एंड 25 मिलियन केसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट ड्यू टू मेडिकल कॉस्ट। तो मेडिकल कॉस्ट और ये सारी चीजें देखिए कितने बड़े केसेस हैं, 36 मिलियन, दैट डाटा इज वेरी वेरी अलार्मिंग। 3 limitations are normally confronted while treating an infectious disease। देखो इन्फेक्शियस डिसीज हो गई तो लिमिटेशंस होती हैं हर चीज की। What are the limitations? Let us see। इनको पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। Once someone has a disease, its body function are damaged and may never recover completely। Is it right? Yes, sir. तो आपका बॉडी फंक्शन डैमेज हो जाएगा और फिर कभी रिकवर ना करें, फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज takes time, which means that if someone is suffering from a disease, he is likely to bedridden for some time, even if we give them proper treatment। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट ये तो है नहीं कि फ्यू डेज में हो जाती है। फिर क्या होता है, लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में कंटिन्यूसली मेडिकेशन ले रहे हैं और बेड पर हैं फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो बहुत समय भी लग सकता है डिसीज के लिए। तो सेकंड प्रॉब्लम ये है।
The person suffering from infection can serve as a source from where infection may spread to other people. तीसरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि one person is giving infection to so many other persons. So what they are talking about Omicron, this is highly infectious, more infectious than COVID-19. Yes, sir. ये है कि 1 person means 10 more. तो फैमिली में आया तो सारों को हो गया और उसके बाद 10 मोर, इस तरह से चल रहा है। तो इन्फेक्शियस डिसीज जो होती है वो बहुत ही सीरियस मैटर होता है, तो वो सारे फैलने का बहुत बड़ा खतरा होता है। तो यहाँ पर ये 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं कि जब इन्फेक्शियस डिसीज को क्यों प्रिवेंट करना जरूरी हो गया। अदरवाइज you know there are instances in the old history when millions of people were wiped out. There was no treatment, proper prevention is not there, then what will happen? You cannot save lives. ऐसे केसेस हैं, हिस्ट्री में पढ़ ले। अब हम ये कह रहे हैं कि 2 ways of prevention, अब प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। तो 2 ways of prevention है हमारे पास, एक जनरल और एक स्पेसिफिक। जनरल वे में हम क्या कहते हैं, सभी को क्या कह रहे हैं हम जनरली, बताइए, आप ही बताइए, जनरल का मतलब क्या हुआ? We should keep our surroundings clean. मतलब there is lot of thing we are talking about hygiene. तो पब्लिक हाइजीन जो है वो एक की प्रिवेंशन है इन्फेक्शियस डिसीजेस का। आपके जो गार्बेज हैं कैसे जाते हैं, हाउ मच इट इज कलेक्टेड, पानी है तो देखो सब चीजें साफ होनी चाहिए, आपके कपड़े जो हैं वो वॉश होने चाहिए प्रॉपर, उनको सुखा के ड्राई करके फिर प्रेस करके पहनना है, क्योंकि माइक्रोब्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले जनरल वे में हम ये कह रहे हैं पब्लिक हाइजीन इज वन बेसिक की टू प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस। कैसे? फॉर एयरबोर्न माइक्रोब्स, जो माइक्रोब्स एयरबोर्न है, we can prevent exposure by providing living conditions that are not overcrowded. So एक बड़ी प्रॉब्लम है, अभी भी क्या कर रहे हैं, ये क्राउडिंग को कम किया जा रहा है, यस और नो? ओवर क्राउडिंग जो है ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। Yes, sir. व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस? भाई क्राउड्स को अवॉइड करो, जहां भी क्राउड्स है वहां मत जाओ। तो उसके लिए सारी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। कितना रिस्ट्रिक्शन हुआ? सिनेमा हॉल में क्या चल रही है, बंद हो गए? Yes, sir. और कौन सा बंद हुआ है? Cinema halls, restaurants. रेस्टोरेंट और मॉल्स में क्या किया उन्होंने? Malls are also shut. तो क्यों किया गया? क्योंकि पहले मेट्रो भी बंद हुई थी दिल्ली में, आपको पता है। Yes, sir. तो इन्होंने जो क्राउड्स है ना उसको मतलब खत्म करना है। एयरबोर्न है तो क्राउड में क्या होगा, एकदम स्प्रेड कर जाएगा। पहला तो यही पॉइंट है, कर रहे हैं हम ऑलरेडी, वी आर ऑलरेडी फंक्शनिंग। सेकंड, वाटरबोर्न माइक्रोब्स, वी कैन प्रिवेंट एक्सपोजर बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। इसके ऊपर बहुत काम चल रहा है कि जो वाटर है देयर शुड बी सेफ ड्रिंकिंग वाटर। You know, contaminated, polluted water is a serious problem. और थर्ड कौन सी डिसीज है? वेक्टर बॉर्न। व्हाट आर वेक्टर बॉर्न इन्फेक्शन? स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया। The diseases which are spread by various animals. Vector, how they spread it? They spread it from infected person to the healthy person. हेल्दी पर्सन, ये बहुत डेंजरस है। सबसे पहले डेंगू में बहुत लोग मरते थे, यू नो, डेंगू यूज्ड टू बी अ ग्रेट किलर। मॉस्किटो बाइट, मॉस्किटो बाइट इज वेरी डेंजरस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल हैव एक्सपीरियंस्ड इट, अभी भी चलता है ये जो मॉस्किटो बाइट है ना, ये बहुत डेंजरस है। तो ये वेक्टर बॉर्न है। Yes, sir. और भी कौन से ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनसे ज्यादा होता है? सबसे ज्यादा इसी से होता है मेरे को, मॉस्किटो। Yes, sir. मच्छर, ये खत्म ही नहीं हुआ वर्ल्ड में, कई बार किसी कंट्री में तो बहुत ज्यादा हो गया था। अभी हम भी बहुत प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं जब कभी होता है, आपको याद है इसके बारे में बहुत होता है। अभी भी हमारे में, अभी भी रिसेंटली कितने लोग मरे थे मॉस्किटो बाइट से? एवरी ईयर
so many tests take place, वो चेक कर सकते हैं डाटा। 2-3 महीने पहले हुए थे ना ये सब केसेस। Yes, sir. तो वेक्टर बोर्न इन्फेक्शंस का मतलब ये है कि आपने ये कहा कि जो ये एनिमल्स होते हैं, दे विल कैरी द इन्फेक्शन फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। तो मॉस्किटो ब्रीडिंग बाइट सबसे ज्यादा है इसके अंदर, और इस तरह से कहीं आपने देखी, जापानीज का भी वो देखा, ब्रेन फीवर और ये सब। तो अब अगर हमारा एनवायरनमेंट क्लीन नहीं होगा तो क्या होगा, ये ब्रीड कर जाते हैं। इनकी ब्रीड, तो हमें इनकी ब्रीडिंग को स्टॉप करना है। क्या करना है? ब्रीडिंग एक प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी ब्रीड करते हैं, तो स्टॉप ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो, इसी के ऊपर सारा काम चल रहा है। तो नहीं तो ये बहुत ज्यादा आ जाएंगे, बोर्न होते जाएंगे, और फिर क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे आपके सामने ही। विदाउट एनी रीजन पीपल विल डाई एंड विल फेस ऑल द प्रॉब्लम्स। वेक्टर बोर्न इन्फेक्शन बहुत सीरियस हो जाती है तो डेथ हो जाती है। तो जनरल तो वे हमें पता ही लग गया। पहले अर्लियर पीपल वर नॉट पेइंग अटेंशन, बट सिंस लास्ट कितने साल से ये ज्यादा आपको बताया जा रहा है। आपने कब तक सुना? पहले तो ऐसे ही चल रहा था सब, पता। सिंस लास्ट 3-4 ईयर्स हमने बहुत ज्यादा इसके ऊपर दिमाग लगाया, और अब बच्चे बच्चे को स्कूलों में हर जगह बताया जा रहा है। पहले देखा था कितना गार्बेज ऐसे गिरा रहता था सड़कों पर, लोग फेंकते थे घर के बाहर, सब हो रहा Yes, था। sir. और पानी भी हम कहीं से पी रहे थे, बाहर जो नलके लगे होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, वहां भी पानी पीते हैं। स्कूलों में भी कई बार देखा कि वो पुराने जो लगे हुए हैं। अब क्या कह रहे हैं, अपना वाटर कैरी कर रहे हैं आप लोग, जगह जगह अपने वाटर बॉटल यूज कर रहे हो, बाहर से नहीं पी रहे। ये सारी चेंजेस आई हैं, जनरल हाइजीन इंप्रूव हुई है, यस और नो? Yes, sir. और इसके ऊपर अभी और भी काम चल रहा है। जो इनफैक्ट मतलब पुअर प्लेसेस हैं और जो भी क्लस्टर्स हैं, या जो इस तरह के, अभी भी वहां पे प्रॉब्लम है। ओपन डिफिकेशन भी बंद किया गया, मतलब now you see in different parts of the country they have created very clean washrooms etc for the people. कोशिश चल रही है, मतलब इतना बड़ा कंट्री है, you can see what problems are. सेकंड क्या कह रहा है, स्पेसिफिक वे। भाई स्पेसिफिक वे क्या है? What do you mean by specific way? आप ही पहले बताइए इससे पहले कि I will bring discussion student. What is your thinking? What do you mean by specific way? Specific ways of preventing the disease. जैसे क्या करेंगे फिर हम? Just for example, in case of dengue, we can prevent water from collecting outside our homes. चलो देख लेते हैं फिर। मैं ये इन्फॉर्मेशन लाया था इसलिए कि देखते हैं क्या कह रहा है स्पेसिफिक वे। इफ वन इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ इन द क्लास, देखो आपके क्लास में बहुत सारे केसेस आते हैं ऐसे, आप देखोगे बच्चों को जुकाम है, खांसी है, बहुत ज्यादा इजी है, ये बहुत नॉर्मल चीज है। कोल्ड और कफ तो बहुत ही है ना आपके वहां भी जब Yes, जाते sir. हैं। अचानक कोई बच्चा खांस रहा है, कुछ कर रहा है, इट इज लाइकली दैट चिल्ड्रन सिटिंग अराउंड विल बी एक्सपोज टू द इन्फेक्शन। तो फिर ये क्या होगा, इन्फेक्शन है तो जितने बच्चे आसपास बैठे उन्हें भी हो जाएगा। बट ऑल ऑफ देम डू नॉट एक्चुअली सफर फ्रॉम द डिसीज। एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स होते हैं, आपके पास एक बच्चा आ गया, उसको क्या है, कोल्ड एंड कफ, उसमें से आप देखोगे 4-5 को हो जाता है और बाकियों को नहीं हुआ, सबको नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? फिर क्या हुआ इसमें? एवरीवन इज नॉट कैचिंग, but few will catch immediately. What do you think? क्या डिफरेंस है आपकी Sir, क्लास में? those who didn't get infected, they have good immune system. इम्यून तो सभी के पास है, लेकिन किसी का इम्यून स्ट्रॉन्ग है और किसी का इम्यून बहुत वीक है। इम्यून क्या होता है? फाइटिंग कैपेबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट ऑफ द माइक्रोब्स। तो आपने कहा बहुत अच्छा पॉइंट है भाई, इम्यूनिटी किसकी कितनी है? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो इम्यूनिटी है वो वीक है, और कईयों की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है। तो जो स्ट्रॉन्ग होंगे दे विल नॉट गेट इट, दे हैव ए देयर सिस्टम, देयर हर चीज का एक सिस्टम है, बॉडी सिस्टम है। मैं क्या कह रहा हूं, बॉडी सिस्टम। सो इट फाइट्स, ठीक है, इट फाइट्स स्टूडेंट्स अगेंस्ट द माइक्रोब्स।
तो अगर ये स्ट्रांग है तो ये इनको मार देगा, अगर ये वीक है तो फिर ये ऊपर आ जाएंगे माइक्रोब्स। तो हम क्या कह रहे हैं, इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी इज नॉर्मली फाइटिंग ऑफ माइक्रोब्स। वी हैव सेल्स दैट स्पेशलाइज इन किलिंग द इन्फेक्टिव माइक्रोब्स। तो आपके बॉडी के अंदर पूरा सिस्टम है, गॉड हैज गिवन यू, द बॉडी हैज बीन क्रिएटेड टू हेल्प यू, टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द माइक्रोब्स इनसाइड। सारी इनसाइड काम हो रहा है आपके, मोर इज हैपनिंग इनसाइड देन आउटसाइड द बॉडी, क्योंकि आपके पास भी आपके सेल्स हैं, ऐसे क्या है, सेल्स हैं which will fight and kill the microbes. These cells go into action each time infecting microbes enter the body. तो देखा है कि जैसे कोई चीज एंटर करती है ये सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, इसीलिए इन्फ्लेमेशन होती है, इसी का कंसिक्वेंस है इन्फ्लेमेशन होती है ना। यस सर। कोई भी दवाई लेते हो, कोई स्वेलिंग हो गई, कोई पेन हो गई, ये सब उसका कंसिक्वेंस होता है। इफ दे आर सक्सेसफुल वी डू नॉट एक्चुअली कम डाउन विद द डिसीज। तो अगर वो स्ट्रॉन्ग है, सक्सेस हो जाती है, तो क्या करेंगे, इनको मार देंगे। द इम्यून सेल्स मैनेज टू किल ऑफ द इंफेक्शन लॉन्ग बिफोर इट अज्यूम्स मेजर प्रपोर्शन। देखो शुरू में जब इंफेक्शन आती है उसे क्या बोलते हैं, माइनर इंफेक्शन। और इफ इट इज नॉट कंट्रोल्ड, नॉट किल्ड, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू मेजर इन्फेक्शन। तो जिनको अभी कह रहे हैं जी सिम्टम्स जो है बहुत वीक हैं, आपने सुना होगा, कह रहे हैं जी मुझे भी हुआ फीवर लेकिन वीक है, सिम्टम्स आर वीक, तो वो घर में कुछ दिन रहे तो उन्होंने रिकवर कर लिया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, यस और नो? यस सर। दैट मींस देयर इन इम्यून सिस्टम cells were able to kill the infecting microbes. तो मैनेज कर लिया उन्होंने, किल ऑफ द इन्फेक्शन, और वो मेजर प्रोपोर्शन में नहीं कन्वर्ट हुई। बट इन फ्यू केसेस स्टूडेंट्स यू हैव सीन इट कन्वर्टेड इनटू मेजर इन्फेक्शन, वो सब हॉस्पिटल की तरफ भागे। एंड अनफॉर्चुनेटली ट्रेजेडी इज दैट मेनी पीपल डाइड इन द हॉस्पिटल्स। आपकी बात सही है या गलत है, जल्दी बताओ। यस सर, दिस इज करेक्ट। तो ये सारा हमने अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अभी चल रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रहा है। अभी नंबर डेथ्स के बढ़ ही रहे हैं, अगर मैं फिगर्स को सर्च करूं, इंडिया में, यूएसए में, इंग्लैंड में, सब जगह ही डेथ्स हो रही हैं, फ्रांस में, जर्मन में, कोई ऐसा कंट्री है जहां नहीं हो रही? नो सर। तो देखो जहां पर भी इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा वो फिर बहुत डिफिकल्ट है रिकवरी। If the number of infective microbes are controlled, the appearance of disease will be minor. Becoming exposed to infection or to be infected with an infectious microbe does not necessarily mean developing noticeable disease. तो होता ये है कि जब माइक्रोब्स चारों तरफ हैं हमारे, तो वो किसी के भी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, हमें भी नहीं पता कि हमारे अंदर गए या नहीं गए। लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो वो फिर उनको किल कर देता, तो इसलिए वो डिसीज हमें नोटिस भी नहीं होती। क्या होती है, नोटिस भी नहीं होती। तो अगर हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो वीक है तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, फिर ये जो माइक्रोब्स हैं वो बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएंगे, तो माइनर से मेजर जो है डिसीज कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जो हो जाएगी। चलो यहां भी समझ में आ गया। तो हमने क्या कहा स्टूडेंट, फिर दोबारा देखें। One way of looking at severe infectious disease is that it represents a lack of success of immune system. अगर कोई severe infection हो जाती है, what it means, that lack of success mean failure of किसका, इम्यून सिस्टम। तो हमारा इम्यून सिस्टम अब काम नहीं कर रहा, फेल हो गया। The functioning of immune system, like any other system in our body, will not be good if proper and sufficient nourishment and food is not available. तो अब इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, बताओ कैसे स्ट्रेंथन करोगे? By taking vitamin C rich food. तो इसके लिए क्या कर रहे हैं, एक तो यही कह रहा है भाई प्रॉपर एंड सफिशिएंट नोरिशमेंट, proper and sufficient, all these questions could be there, क्योंकि आजकल ये सब चल रहा है। proper and sufficient students nourishment, हम we are facing all this,
देखो बहुत सारे लोग क्या खाते हैं, जंक फूड। अभी कोई बंद तो नहीं कर रहा जंक फूड, इसमें कुछ होता ही नहीं न्यूट्रिएंट्स, देयर आर नो न्यूट्रिएंट्स बेसिकली। तो इससे क्या मिलने वाला, आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, सिस्टम वीक हो जाएगा। तो दे आर गोइंग टू बी वेरी मच स्ट्रांगली अफेक्टेड बाय दिस। तो जिनके पास प्रॉपर सफिशिएंट है। इसके अलावा आपने एक और भी चीज देखी है, ये जो एक्सरसाइज लोग करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, जैसे योगा कर रहे हैं, ये मेडिटेशन कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो ये किस लिए कर रहे हैं हम, योगा थेरेपी चल रही है बहुत सारी, ये कर रहे हैं। तो इसका फंक्शन क्या होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। तो अगर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया तो क्या होगा, फिर हमारे को सक्सेस मिल सकती है, जो भी हमारे पास इन्फेक्शन अंदर आ रही है उसको किल करने की। तो जो भी अंदर हमारे जर्म्स आ रहे हैं, दे विल किल द माइक्रोब्स। कौन करेगा, हमारा अपना बॉडी करेगा, हमारे अपने सेल्स करेंगे। ठीक है, Yes, sir. फूड है। Therefore, second basic principle of prevention is that availability of proper and sufficient food for everyone. तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत पुअर हैं, देखो जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत पुअर है। पुअर कंट्रीज जो हैं, देखा आपने, जिनकी पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, उनके पास ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है और उनमें ज्यादा डेथ्स होंगी, जितनी भी इन्फेक्शंस फैलेंगी, जितनी भी इन्फेक्शंस फैलेंगी। यस और नो? Yes, sir. All right, this ends up this part of the prevention, कैसे करेंगे हम और क्या करेंगे। Then we will meet you next time. What other chapters we have to study after this? Sir, after this, chemistry chapters, all we have done. In physics, sound chapter is left, and in bio, natural resources, and 2 or 3 more chapters are left. ठीक है, and we will be doing them along with lot of question answer sessions will be there. And okay, bye bye then, I'll see you next time. Thank you, sir.